Good morning, my dear friends. Hope you are all good. So, today we discuss the chapter number second, that is analysis of financial statement. Okay, so let us see what is mean by financial statement. Financial statement are the end of the product of accounting process which show the financial results of specific period or financial position as on a particular date. It is a basic and formal annual report through which business communicate the financial information to various user groups. Financial statement nothing but your the trading account, nothing but your profit and loss account and balance sheet. This is a financial statement which and the product of accounting process. Accounting process means journal entry, ledgers, then trial balance, then final account. That is the end product of financial statement, which is show the financial results of specific period or specific position. The particular date, that is the balance sheet. The balance sheet is showing the financial position of business on a particular date. Or financial statement another is trading and profit and loss account, which shows the trading results, or profit and loss account show the net profit. So this is a financial statements, or this information is basically used for to business to communicate the financial information to various user groups. Various user groups means are creditors, that is bankers, banks, or shareholders, or any other, that debentures, to know what is the position of the financial of the that company on that particular date or that particular uh, date. That is called as financial management. Look at the format of financial statement. This is a compared financial statement, uh, that is assets and trading account income statements. This is a statement format. Okay, this is a formula, or you can say form of the financial statement. Next, let us see objective of financial statement to provide a reliable financial information about economic resource, that is assets and obligations of particular firm. Second, to provide information about earning capacity of the business firm. Third, to provide reliable information about changes in resources and the obligation arises out of business activity. And fourth, disclose the various accounting policy followed in preparing the financial statement to various user groups. Okay, the first objective is to provide reliable financial information about economic resources, that is assets and obligations of liabilities of the business firm. फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने को बताता है कि कितने तुम्हारे पास एसेट है और कितने तुम्हारे पास लायबिलिटीज है, शोइंग द फाइनेंशियल information, that is asset, what how many assets you have or how many liabilities you have. So this is a showing that financial statement, that is financial balance sheet show the assets and liabilities. Second, to provide the information about earning capacity of the business firm. सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो अर्निंग कैपेसिटी बताता है कि सेल्स के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट कितना है, सेल्स कितना है, ये बताने का काम इज showing the financial statement. That is the objective of financial statement. Third one, to provide a reliable information about changes in various in sources and obligation arising out of business activity. बिजनेस एक्टिविटी में से क्या क्या रिसोर्सेस आए हैं और क्या क्या ओब्लिगेशन देना है, ये रिलायबल सोर्स बताने का काम
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है। और लास्ट, टू डिस्क्लोज various accounting policy followed in the preparing financial statement to various user groups। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर की जाती है, वो बताने का काम, यूज़र को बताने का काम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखेंगे अपन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The process of critical evaluation of financial position contained in financial statement to order to understand or make a decision regarding operation of firm is called as financial statement। It's called as financial statement analysis। प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवैल्यूएशन, आप एनालिसिस करते हो सपोज कौन सी चीज़ का, आप एनालिसिस करते हो कि क्या इसका ड्रॉबैक्स है, क्या है इसमें, इससे ये हुआ तो ये क्या होगा। सपोज सेल्स बढ़ा तो नेट प्रॉफिट पे क्या परिणाम होगा, सेल्स घटा तो नेट प्रॉफिट पे क्या परिणाम होगा। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हुए तो नेट सेल्स पे क्या परिणाम होगा। ये क्या है, ए क्रिटिकल एनालिसिस, द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में जो जो आइटम दिए हैं, जैसे कि सेल्स दिया है, परचेस दिया है, क्रॉस प्रॉफिट दिया है, एक्सपेंसेस दिए हैं, इनकम दिए हैं, ये बढ़ने से और घटने से उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या परिणाम होता है और क्या चेंजेस होते हैं, उसको बोला जाता है एनालिसिस। क्या बोलेंगे उसको, एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट का यूज करके आप आगे के डिसीजन ले सकते हो कि सेल्स बढ़ने के क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजंस है कि आप सेल्स बढ़ा सकते हो, और क्या क्या रीज़न के वजह से एक्सपेंसेस बढ़े हैं, जो इस वजह से तुम एक्सपेंसेस कम कर सकते हो और सेल्स बढ़ा सकते हो। दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, it is basically a study of relationship among various financial facts and figures as given in the set of financial statement and the interpretation thereof, again the insight into the profitability, operational efficiency or firm asset is financial health and prospect। और उसमें से कुछ तो भी अर्थ निकालते हैं, उसमें से कोई इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि ये बढ़ने से ये होगा, ये घटने से ये होगा, असेट बढ़ने से, सेल्स बढ़ने से क्या क्या किस किस पे परिणाम होते हैं। असेट सेल्स बढ़ने से परिणाम होता है ग्रॉस प्रॉफिट पे, ग्रॉस प्रॉफिट परिणाम होता है फिर नेट प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट से परिणाम होता है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन। सो दिस इज कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, Next, the term financial analysis include both analysis and interpretation. The term analysis means simplification of financial data by methodological classification given in the financial statement। वो classification करना है, simply उसका simplification करना है डेटा का, और कुछ मेथड क्लासिफिकेशन करना है। उस वजह से आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना आना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिया है। जो डेटा है वो डेटा समझ में आना चाहिए, उसको बोला जाता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा। दिस टू आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एनालिसिस करने के बाद ओके, जैसे कि मैंने एग्जांपल बोल सकता हूँ कि नेट प्रॉफिट रेशो, आपने को नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है, तो नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो
इसमें समझना है इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, इसमें से मतलब क्या निकलता है कि सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज में है, ये बताता है इंटरप्रिटेशन। क्या बताता है? इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है कि सेल्स नेट प्रॉफिट ये ग्रॉस प्रॉफिट या सेल के तुलने में इतना इतना परसेंटेज में है, इसको बोला जाता है इंटरप्रिटेशन। एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा, जो डेटा दिया है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये बताने का काम इंटरप्रिटेशन करता है। दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों दोनों के लिए। मीन्स इंटरप्रिटेशन पहले एनालिसिस करना है, बाद में उसका इंटरप्रिटेशन करना है, ये डिपेंड है कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नेक्स्ट देखते हैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टूल्स मीन्स हथियार, टूल्स दैट इज हथियार, और क्या बोल सकते हैं, उस टूल के यूज़ करने से आपको पता चल सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कैसा बनाया जाता है। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके टाइप्स है, टूल्स है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस। तो देखते हैं वन बाय वन। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज वर्जेंटियल एनालिसिस। वर्जेंटियल एनालिसिस उसको कहा जाता है, ओके, असं आडवं एनालिसिस केले जातं, वर्जेंटियल एनालिसिस आर फायनान्शियल स्टेटमेंट which is showing the financial position, showing the financial position and profitability at different period of time। क्या दिया जाता है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में है, इनकम स्टेटमेंट, उसमें बहुत सारे ईयर्स के प्रॉफिट डेटा दिया होता है, 2016 2017 दो, और दोनों में का फ़र्क दिखाया जाता है, एब्सोल्यूट चेंज क्या हुआ है, 2016 में कितने सेल्स थे और 2017 में कितने सेल्स थे, वो निकाला जाता है, तो उसको बोला जाता है वर्जेंटियल एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट को अलग नाम है वर्जेंटियल एनालिसिस। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे पीरियड ऑफ टाइम का कंपैरिजन किया जाता है, ये साल के अगले पिछले साल से कंपेयर किया जाता है, उसको बोला जाता है वर्जेंटियल एनालिसिस। देखो दिस स्टेटमेंट गिव आइडिया ऑफ एंटरप्राइज फाइनेंशियल पोजीशन 2 और मोर पीरियड। इससे पता चलता है कि 2 और 3 साल में कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो इसमें से कंपेयर करने से आपको पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चल रही है और ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं चल रही है, उस कंपैरेटिव स्टेटमेंट से पता चलता है। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट is possible only when the same accounting principle used in preparing this statement। जो पिछले साल में बैलेंस शीट आपने तैयार की थी, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल वहाँ पे यूज़ किए थे, वही प्रिंसिपल वही ईयर में यूज़ करना है, तो कंपैरिजन आप कर सकते हो, दैट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट क्या कंपेयर किया जाता है पिछले साल की और ये साल की, और उसके इसके चेंजेस, अपसेटूट चेंजेस क्या होते हैं, कितने कम हुए, और परसेंटेज में उसका निकाला जाता है, उसको बोला जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस। उसको क्या किया जाता है? वर्टिकली लिखा जाता है। वर्टिकल एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच रीड विथ एब्सोल्यूट फिगर, ओनली एब्सोल्यूट फिगर रीड की जाती है, कैन बी मिसलीड की जा हो सकते हैं। देयरफॉर द वर्टिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज डन बाय कंसिडरिंग percentage form। The balance sheets item are compared the total asset in term of percentage by taking total assets as 100
to total liability in term of percentage by taking total liability as a 100. Therefore, whole balance sheet is convert into the percentage form, and such convert the finance balance sheet is known as common size balance sheet. Similarly, profit and loss are prepared. जो भी डेटा होता है, देखो ये उसका फॉर्मेट, पूरा डेटा एब्सोल्यूट फिगर कभी कभी ये होती है। एब्सोल्यूट फिगर देखो ये चेंजेस, एब्सोल्यूट फिगर कभी कभी चेंज होती है, वो समझ में नहीं आता है कि परसेंटेज में कितना बड़ा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज लिया जाता है और लायबिलिटी और असेट को 100 बेस लिया जाता है और ये परसेंटेज निकाला जाता है कि 2013 10 और 12 में इतने शॉर्ट टर्म डेप्ट है तो इतने बड़े, फिर इतने बड़े, ऐसा इससे आपको पता चलता है कि पता चलता है कि कंपेयर किया जाता है एज अ परसेंटेज फॉर्म, उसको बोला जाता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज पिरामिड मेथड, studying the operational results and financial position over the series of 5 years is trend analysis। 5 ईयर्स की सीरीज दी जाती है और उसका ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है कि कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, दैट इज ट्रेंड। उसका प्रभाव क्या चल रहा है, आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज trend analysis। Calculation of ratio of different item for various period is done, then compare under this analysis whether the enterprise is trading upward or backward. The analysis of ratio over the period of year is done. By observing this analysis, the sign of good or poor management is detected। इससे पता चलता है कि आपका मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अपवर्ड जा रहा है तो आपका मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है तो आपका मैनेजमेंट पुअर है। इससे ट्रेंड एनालिसिस से पता चलता है। इसका ये देखो फॉर्मेट, ट्रेंड एनालिसिस 2007, फिर 2008 में बढ़ते 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 इसी आगे जा रहा है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस है। इनकम 2007 कंपेयर लिया जाता है, उसका बेस लिया जाता है और बेस लेते हुए कंपैरिजन किया जाता है, इसको बोला जाता है ट्रेंड एनालिसिस। थैंक यू। दिस इज चैप्टर नंबर 2 जो मैंने आपको बताया, और स्टेप बाय स्टेप इसका मैं मल्टीपल चॉइस की एग्ज़ाम आपको लिंक भेजूँगा इस चैप्टर पे। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आया है तो अच्छा है, नहीं समझ में आया है तो आप मुझे फिर से बोल सकते हो ये समझ में नहीं आया सर। थैंक यू वेरी मच।